A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to start our new chapter of your book, Indian Constitution at Work, and the name of your chapter is Election and Representation. So, these two terms, like they are like very much sometimes both of these words, elections and representation, especially election, is synonymous to democracy. Election का मतलब है democracy. Election is equal to democracy, but it is not true, wholly true कि election का मतलब ही democracy होता है. So basically this is one of the most important chapter, and it is important uh, as elections, like as you all know, elections for a democratic country, how vital role elections play, right? So we will get to know how election, what are elections, what are the different methods of elections, and what are the different characteristics of the system of elections adopted in our country, what are in uh, how free and fair elections are became important for us, and we will talk about the electoral reforms also. Okay, so now class, election, please consider yourself as a sports person or anybody who plays game, ठीक है? If that particular game, for example chess, ठीक है, if that particular game does not have any rules, और you can say कि वो जो गेम्स के रूल्स हैं उसमें हम चेंज करते रह रहे हैं, जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, हैव यू एवर प्लेड चेस? What would happen if the black knight suddenly started moving straight rather than 2.5 squares? ब्लैक नाइट जिसको नॉर्मली हम हॉर्स, घोड़ा जिसे बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में हम लोग नॉर्मली उसको वही बोलते हैं. तो अगर वो 2.5 स्क्वायर्स नहीं चलेगा, ठीक है, 2.5 कदम नहीं चलेगा, और इंस्टेड ऑफ दैट वो स्ट्रेट चलने लग जाएगा, तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा ना. जस्ट लाइक दैट क्रिकेट में भी बहुत सारे रूल्स चेंज हो जाएंगे इफ अंपायर इज नॉट फेयर. अगर फुटबॉल में भी ऐसा है, या फिर बॉक्सिंग में भी इफ रेफरी इज नॉट फेयर, then that game becomes change, right? बहुत change हो जाएगा. So we need the rules, we need the umpire, and we need the rules for the game, and we need the fair umpire for the judgment, right? So these are just like elections में भी rules and regulations का होना बहुत जरूरी है, and especially free and fair इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है. एक गेम से ही उसको कंपेयर कर लो. कौन सा गेम खेल रहे हो, सपोज चेस खेल रहे हो, ठीक है, चेस खेल रहे हो या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, चेस खेल रहे हो, रूल्स चेंज हो गए, चेस पूरा पूरा गेम चेंज हो जाएगा अगर रूल्स चेंज हो गए, ठीक है. क्रिकेट खेल रहे हो, अंपायर जो है वो फेयर नहीं है, ऑब्वियसली लाइक क्या होगा, जो क्रिकेटर्स हैं, जो आपके टीम जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ क्या होगा, उनके साथ तो मतलब कि आप बोल सकते हो ना कि सही चीज नहीं हो रही है. तो जस्ट लाइक दैट इलेक्शंस में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत जरूरी है, प्लस साथ में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है. एंड दीज आर द लाइक डिसीजंस, ठीक है, जो हमारे इलेक्शंस कैसे होंगे, और क्या फ्री एंड फेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें एक डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है. सो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शंस एंड representations. What are the constitutional provisions for the elections and representation? What are the methods of election chosen in our in our country, and how we implicate those constitutional provisions, and regarding like impartial machinery for conducting elections की impartially और free and fairly हम कैसे elections को conduct करवा सकते हैं, ठीक है. So after reading this chapter we will basically know about the different methods of elections, and we would understand
different methods of elections, what are the characteristics of the systems of elections adopted in our country, importance of the provisions, what importance provisions have for free and fair elections, debate on electoral reforms also. Okay, so now your first topic is elections and democracy. Okay, elections and democracy, and we start this chapter with the with asking ourselves two questions. First question is, can we have democracy without holding elections? Can we have democracy without holding elections? And the second question is, can we hold elections without having democracy? In first question, what they are trying to ask, or what they are trying to ask, क्या हम elections के बिना हमारे पास democracy हो सकती है? freedom, डेमोक्रेसी को हम फ्रीडम से भी सिनोनिमस लाइक करते हैं। डेमोक्रेसी जो है, क्या इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेसी पॉसिबल है? क्या इलेक्शंस होल्ड किए बिना लोगों को जो है राइट्स मिलेंगे, लोगों के डिसीजंस को माना जाएगा? सेकंड क्वेश्चन है, क्या इलेक्शंस ओनली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही लिया जाता है? कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? इज इट? So we will answer both these questions. Okay, so the first question, like what it reminds us, like it reminds us the representation in a large democracy, how we represent ourselves, how common people represent, and how important common people plays a role in a democracy. Obviously कोई भी डिसीजन लेना है, all citizens cannot take direct part. ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है तो डायरेक्टली तो सबके, आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी इलेक्शंस के बारे में पढ़ा है कि डायरेक्ट हमारी जो कंट्री है वहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मींस कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं ऑन द एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवरसेल्फ। हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए क्या करता है, क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, राइट? सो what the first question, like representations in a large democracy, all citizens cannot take direct part. Obviously बात है, सारे citizens directly क्या नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते हैं। For एक एग्जांपल लो क्लास का, एक क्लास में बहुत सारे के सारे बच्चे ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को मतलब डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल ना कि आप प्रिंसिपल के पास जाएं और वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बैठे और उनको बोले कि मैम ये चीजें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ये स्कूल लेवल पे फिर भी पॉसिबल हो सकता है, बट मोस्टली क्या होता है, आप क्या है अपनी क्लास टीचर्स को क्या बताते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, एंड क्लास टीचर आपको रिप्रेजेंट करती है आपकी प्रिंसिपल के सामने, राइट? सो जस्ट लाइक दैट एक कंट्री में भी क्या है, जैसे वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, तो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस कौन लेते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द सिटीजन्स टू टेक अ डायरेक्ट पार्ट इन एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Okay, so representatives are elected by the people. कौन representatives को elect करते हैं, लोग elect करते हैं, and that's why elections are important. So like normally क्या होता है, जब भी हम elections के बारे में, इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो हम इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक नाम आते ही हमारे या गवर्नमेंट नाम आते ही हमारे माइंड में कहीं ना कहीं इलेक्शंस जो है, उस इलेक्शन की इमेज आने लग जाती है, राइट? तो इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट, आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट जो है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो there are two types of democracy. First one is the direct democracy, and another one is the indirect democracy. Direct and indirect democracy. Now what is this direct democracy? Direct democracy direct and indirect democracy. Direct democracy is one where the citizens directly participate in day-to-day decision making and in the running of the government.
ओके जैसे कि एंशियंट ग्रीक में क्या होता था, कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता था, कोई भी डिसीजन लेना होता था, तो एंशियंट में ग्रीस में क्या होता था, ग्रीक में जितने भी सिटीजन्स होते थे ना, एक्टिव सिटीजन्स, वो डायरेक्टली हर एक डिसीजन के लिए वोट करते थे। कि फॉर एग्जाम्पल एक कि हमारे गांव वेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेस पे वेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी वो क्या करते थे, एक वोटिंग इलेक्शन प्रोसेस रखते थे। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है वहां पे। ये एग्जाम्पल है ग्रीस का। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जितने भी सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और गवर्नमेंट को रन करने में वो हेल्प करते हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। बट इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी विच वी फॉलो इन आवर कंट्री इंडिया, एंड उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ग्राम सभा देख सकते हो, म्यूनिसिपैलिटी देख सकते हो, ठीक है, हम अपने एमएलए को चूज करते हैं, हम अपने एमपी को चूज करते हैं, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग डिसीजंस ऑन आवर बिहाफ, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं कि भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं और वो हमारे बिहाफ पे क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। सो एक आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो I think आप easily लिख लेंगे, direct democracy is one where the citizens directly participate in day-to-day activities or decision-making process and help in the running of the government. And example पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो, the ancient city-states in Greece were considered, ठीक है, examples of democracy. And indirect elections are those indirect democracy is those is that democracy is where the citizens indirectly participate in the day-to-day decision making. They choose their representative, and on the behalf of the citizens their representative take decisions. Okay, example India में आप ग्राम सभा, local governments या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमपी, इनका एग्जांपल दे सकते हो। ओके, सो नाउ बट in such an arrangement, citizens choose their representatives who in turn are actively involved in governing and administrating the country. Obviously हम ऐसे citizens को ही choose करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जो अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाए कंट्री को, एक्टिव रहे, जो लोगों की सुने, लोगों की हेल्प करे, ठीक है, और उनके बिहाफ पे अच्छे डिसीजंस ले। So the method followed to choose these representatives is referred to as election. So what is election? The method followed to choose these representatives is referred to as elections. The method where we choose our representative for taking day-to-day decision and for running of the government, that process is known as elections. Okay, obviously citizens का बहुत limited role है decisions लेने में, या फिर in running the administration they played a very limited role. They are not actively involved, or they are not involved directly, they involved indirectly. But all the major decisions taken by elected representatives, like citizens play a great role because they are the one who choose their representatives. And if that representative will not work, citizens will not choose him for the another time, right? So all the major decisions are taken by elected representatives. The method by which people elect their representatives become very important. So why? Because decisions are taken for the people, and these decisions are taken by the representative, which is chosen by the people. And for this purpose, जो भी method है, कौन सा मेथड है, इलेक्शन है। तो ये जो इलेक्शन मेथड है इसका फ्री एंड फेयर होना, ठीक है, और ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एक, और फ्री एंड फेयर होना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, टाइम टू टाइम इसका इस प्रोसेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक बार कंट्री ने एक बार स्टार्टिंग में जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई उन्होंने अपने इलेक्शंस करवाए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया, दैट्स इट। नो, ये नहीं होता है। एक टाइम स्पैन होता है, उस टाइम स्पैन में आपको क्या करना होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना होता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So now our second question, what is our second question? First question तो समझ आ गया ना, can we have democracy without holding elections? So your answer is no. We can't we can't have democracy without holding elections. अगर हम ऐसा बोलेंगे ना कि elections डेमोक्रेसी है बट इलेक्शंस नहीं हो रहा है, तो कैसे बोल सकते हैं हम कि ये डेमोक्रेसी है? पीपल आर लोगों का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना, लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं वो डेमोक्रेसी है? बट हियर democracy, in democracy elections are necessary, right? So now your second question is, can we hold elections without having democracy? Can we hold elections without having democracy? So obviously all elections are not democratic. हम लोग सोचते हैं कि सारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक ही होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में ही होते हैं। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आपकी कंट्री मोनार्कियल है, वन पार्टी सिस्टम है, फिर भी आपके कंट्रीज में क्या है, इलेक्शंस हो सकते हैं। So they are very in fact non-democratic rulers are very keen to present themselves as democratic. They do so by holding election in such a way that it does not threaten their rule. And why they do so? जहाँ पे one party system है या monarch rule है, why they do so? They do so because election अगर वो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग के लिए उन्होंने इलेक्शंस करवा दिए, या फिर कि सम पॉलिसीज के लिए कि ये पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने इलेक्शंस करवा दिए। व्हाई दे आर डूइंग सो? दे आर डूइंग सो जिससे कि उनकी जो उनका जो रूल है वो लाइक उसमें कोई थ्रेटन ना आए, उसमें कोई आप बोल सकते हो कि उसमें कोई है ना हर्डल ना आए। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक वुड डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म from a non-democratic election? What can be done to ensure that elections in a country would be conducted in a democratic way? Obviously these are like very important questions कि हम एक democratic from distinguish a democratic from a non-democratic election, कि democratic और non-democratic election को हम कैसे distinguish कर पाएंगे, कि कैसे ensure कर पाएंगे elections जो हो रहे हैं democratic way में हो रहे हैं, कि उसमें कोई मतलब नॉन डेमोक्रेटिक कोई भी मेथड यूज नहीं किया जा रहा है। सो दिस इज वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन हियर। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का आप रोल देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक वाइटल रोल प्ले करता है। The constitution of a democratic country lays down some basic rules about elections, कि क्या-क्या basic rules होने चाहिए। For example, in India क्या है basic rules? कुछ basic rules है, हर 5 साल में elections होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ऑब्वियसली सम एक्सेप्शंस आर देयर, बट कर नहीं सकती है। कुछ इलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, कौन कुछ जैसे रिजर्वेशंस हैं, तो एक प्रोसेस है, बेसिक लॉज हैं, बेसिक रूल्स हैं इलेक्शंस के लिए। सो द डिटेल्स आर यूजुअली लेफ्ट टू बी वर्कड आउट by laws passed by the legislature, and ये कुछ basic rules और क्या-क्या हो सकते हैं। Who is eligible to vote? Obviously very important question। अब आप बोलोगे कि 1 साल का बच्चा है, उसको समझ ही नहीं है और उसको हम वोटिंग राइट दे देंगे, तो वो सही है क्या? नहीं है। So in India we have the eligibility to vote is 18 years, right? So who is eligible to vote? कि अब जैसे कुछ कंट्रीज में पहले था कि ओनली एक्टिव सिटीजन्स, ओनली मेन वाज लाइक अलाउड टू वोट, वुमेन को राइट नहीं था, या फिर कुछ किसी के पास कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी होती थी तभी वो वोट कर सकता था, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक लॉज बताता है। इन आवर कंट्री एवरीवन हु इज एवरी सिटीजन हु इज 18 years of old or above it can vote, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन was there कि मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, या फिर एक्टिव है कि पैसिव है,
ये सारी चीजें नहीं देखी जाती है। एवरीबडी हु इज ऑफ 18 years of old or above has the right to vote. Who is eligible to contest? Yes, this is also important. ऐसे थोड़ी ना है कोई भी बाहर जैसे आप पार्क में टहलने के लिए गए हो, आपको मन किया कि मैं इलेक्शंस में कंटेस्ट कर लेता हूँ, अपने आप को खड़ा कर लेता हूँ, इलेक्शन कंटेस्ट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कुछ जैसे एक एज लिमिट होती है, प्लस उसमें कुछ आपका आप बोल सकते हो कि और भी बहुत सारी चीजें होती है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। So who is to supervise election? Obviously free and fair करवाना है तो supervision भी जरूरी है, तो कौन supervise करेगा? How do the voters choose their representatives? Voters choose कैसे करेंगे अपने representative को? उसका method क्या होगा? How are the votes to be counted and representatives elected? ठीक है, votes को कैसे count करेंगे, representatives को कैसे elect करेंगे? So these are like the basic rules which are mentioned in our constitution. Okay, so the constitution plays a very important role because it distinguish between a democratic form of democratic elections है कि non democratic elections है, उसमें distinguish करता है, ensure करता है जो elections है fairly हो रहे हैं, democratic way में हो रहे हैं. Okay, so like most democratic constitution, the Constitution of India answer all these questions. As you can see, the first three questions are about ensuring that elections are free and fair and thus be called democratic. The last two questions, कौन से जैसे who is eligible to vote, who is eligible to contest, who is to supervise elections, democratic free and fair way में हो रहा है कि नहीं हो रहा है. The last two questions are about ensuring a fair representation. कि representations तो fair हो रहा है ना, कि आप काउंटिंग कर रहे हो, काउंटिंग फेयरली हो रही है कि नहीं हो रही है. ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस है. हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड हाउ आर द वोटर्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, कि ये आपका क्या शो कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी. ओके, okay, now there is a cartoon picture here which made by शंकर. ठीक है, आप देखोगे बहुत सारे शंकर अपने पॉलिटिकल साइंस बुक में 11th क्लास 12th क्लास में जो ये कैरिकेचरिस्ट है या कार्टूनिस्ट बोल दो, ये शंकर ही है. So now they say elections are carnival of democracy, but this cartoon depicts chaos instead. Is this true of elections always? Is it good for democracy? So now here the question arises, like this cartoon was made in the year 1957. ठीक है, on 17 February 1957 ये कार्टून जो है आपका पब्लिश हुआ था. एंड दे से इलेक्शंस आर कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी, कार्निवल सेलिब्रेशन, कि एक डेमोक्रेसी के लिए जस्ट लाइक जैसे क्रिसमस में कार्निवल्स होते हैं. ठीक है, इंडियंस के जो हिंदूज हैं उनके लिए दिवाली एक क्या है, एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. जस्ट लाइक दैट डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस भी एक फेस्टिवल है, एक कार्निवल है. बट इफ वी लुक एट दिस कार्टून, क्या शो कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब क्या है, कितने सारे वोटिंग, जो ये जो छोटे छोटे आपको पिक्चर्स ये दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं ये एक छोटे छोटे स्लिप्स दिख रही है, ये शो कर रहा है कि वोट्स को शो कर रहा है. और ये जो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, नेता ही दिख रहे हैं. ठीक है, तो नेता लोग क्या कर रहे हैं कि वोट्स के लिए ना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि हमें वोट्स मिले. So this cartoon depicts chaos instead. Is this true of elections always? Is it good for democracy? I just want to know your opinion about it. So elections, no, it is not true always. Okay, कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सही हो. ठीक है, एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी इफ पीपल आर फाइटिंग फॉर द वोट्स. यस, इज इट इलेक्शंस में हमेशा सही भी नहीं होता है ये क्योस. क्यों नहीं होता है क्योस? ठीक है, कि समटाइम्स व्हाट हैपेंड, लाइक इलेक्शंस बहुत जो हमारे वो होते हैं, क्या इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं,
ठीक है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इंश्योर करती है कि कोई दंगा फसाद ना हो जाए या कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो जाए, साइलेंटली और पीसफुली हमारा इलेक्शन प्रोसेस हो। और ये जो वोटिंग के लिए आप शो कर रहे हो कि ये दिखा रहे हैं जो ये नेता लोग भाग रहे हैं या फिर ऐसे कर रहे हैं, तो ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, जो वोटर्स हैं उनके सामने अपने व्यू पॉइंट्स को रखते हैं, अपनी पॉलिसी जो भी वो पॉलिसी लेकर आएंगे उसको रखते हैं, उनके बेसिस पे क्या होता है वोटर्स इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। यस, समटाइम्स हमें कुछ एरियाज में देखने को मिलता है कि क्योस हो रहा है, बट समटाइम्स नहीं होता है, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी कि हमेशा अगर क्योस होता रहे तो, ठीक है। बट समटाइम्स लाइक जब भी ये होता है तो इसके लिए इलेक्शन जो कमीशन है वो इंश्योर करती है कि इलेक्शन प्रोसेस फेयरली हो, कोई क्योस ना हो, ठीक है। और इन केस कहीं पे हो भी जाता है तो वो फिर से इलेक्शंस करवा देते हैं, ठीक है। इट तो सो वी विल से दैट नो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ओके। एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी अगर कोई chaos होता है, ठीक है। थैंक यू so much for joining the class everybody. Go through the content, go through the topic, and if you face any problem do let me know. Please take care of yourself. Bye bye.